It's again 8:20 and me and Abhijit are both late as always and just went out from our house. Let's see if we'll be able to reach the station in time. There is an advantage that Abhishek will drop us in Agra, so if the rail gate will go down then it will not be a matter for us. Let's see if we'll reach when we'll reach. 31 and we have reached the station. Yesterday it was raining. Yesterday it was raining and today it's so much sunlight. Shining, it's shining. Sun is shining. Shining like a sun. The earth is shining like a sun. That we are unable to open our eyes and like sleepy eyes. Feeling really sleepy. Oh. Now थोड़ा shadow आया है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, फिर धूप आ गया. As always, the train arrived at 8:42. We got a seat. So we have reached Lake Garden station. Luckily we got seat from Majar station and Abhijit got it from Tollygunj. Lucky, quite lucky. At least we didn't need to stand till Lake Garden, right? So let's go to college and see how's our day gonna happen. Really sleepy, feeling really sleepy. Yeah. I should approach mutual fund. What they will do? They will take that money. They have time. They have skill, professionally qualified, experience of life, and with that small amount, with many they have collected, accumulated from the savings of people, they will invest in stock market. And a good return is till date. You can see that positively it is coming. Right? This is what a role of mutual fund is. It acts as a middleman. This was discussed. Second thing was discussed exam pattern. Since you all will be approaching what? NISF 5 exam, mutual fund distributor. So what is the pattern? There will be 100 questions. 50% is the pass marks. Right? No negative marking is there. So I am expecting that everyone should score above 80%. The target should be such. How you can achieve this 80%? The next concept is 12 units are there. If you go to curriculum, there are 12 units you need to study. First unit talks about investment avenues. What is investment avenues? There are various way of investment, not only in securities, but you can buy real estate, you can buy gold, silver, okay? You can buy debt instrument or post office savings scheme, senior citizen savings scheme. There are various schemes you can buy. Fixed deposit are there, interest earning, right? And fourth is commodity. So commodity, equity, debt, and real estate is a common platform where people generally invest. Okay, this was covered in unit 1 also. And varieties are there. You have to see various factors. This will be taught in unit 1. When you invest, what are the factors to be considered? That is also important. जब हम इन्वेस्ट करते हैं, what are the factors to be covered? सर लिक्विड हो पाएगा कि नहीं? खरीद तो लिया, बैठे हैं, बेच ही नहीं पा रहे. सर डिविजिबिलिटी है कि नहीं? एक फ्लैट खरीद लिया, बेचना है, लेकिन उतने पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आधा फ्लैट बेच नहीं पा रहे. So there are various things you have to consider. Taxability. When you buy a property, you have to register it. If you buy a gold, there is a risk of loss also. चोरी वोरी भी हो सकता है. तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते हैं, ये सोचना पड़ेगा. चैप्टर 1 ये बताता है. चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 टॉक्स अबाउट म्यूचुअल फंड. कोर एरिया. स्ट्रक्चर क्या है म्यूचुअल फंड का? टॉप में कौन होता है, नीचे कौन होता है? विल कम टू दैट. टॉप में क्या होता है, नीचे क्या होता है? स्ट्रक्चर के बाद देयर आर स्कीम्स, देयर आर स्ट्रक्चर्स, देयर आर म्यूचुअल फंड स्कीम्स. सो सेकंड थर्ड यूनिट टॉक्स अबाउट ऑल दिस. REITs क्या होता है, INVITs क्या होता है, राइट? रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, फिर REITs क्या है, इस दोनों में डिफरेंस है. So there are various concepts covered in chapter 2 and 3. Chapter 4 is covering legal aspects that you have to follow. SEBI law, SEBI mutual fund regulation 1996 specifically. So that's what we cover.
talks about that. Because you have to follow that regulation in order to know what mutual fund can do. The law has given the authority of power. Chapter 4 में वो बात लिखा है. Fifth chapter talks about the 3 important documents, and that is mandatory: SID, SAI and K. And fund fact sheet. क्या होता है, कौन बनाएगा, बनाना जरूरी है, मैंडेटरी की नहीं लॉ में. ये 5th chapter है. 6th chapter is the main theme: mutual fund distributor. अच्छा नाम दे दिया गया एजेंट. एजेंट को क्या मिलेगा? म्यूचुअल फंड बेचवा देगा तो डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स म्यूचुअल फंड एंड कन्विंस देम टू बाय दिस म्यूचुअल फंड. ऑब्वियसली दे विल गेट कमीशन. डोंट कंफ्यूज विद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जाके एडवाइस देते, बदले में फीस लेते. So 6th chapter talks about this. 7th and 8th chapter, if you go through the contents, the 7th chapter talks about NAV calculation. NAV calculation, it is done on a daily basis and till late night 11 it has to be updated. अगर मैं आज म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूँ, if I am an investor, I want to buy a mutual fund, मुझे NAV कल रात का दिखेगा, क्योंकि आज मार्केट का फ्लक्चुएशन is not adjusted. So what I will do? What is the time? If I apply before 3 p.m., what will be the amount? What will be the NAV where I will get allotted? Suppose 20 rupees कल का है, तो मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ. I will get 5 units, but आज के end of the day में 21 हो जाएगा. हो सकता है मार्केट अच्छा हो, तो मेरे को तो 10 units नहीं मिलेगा. I will get something less because price high हो गया. तो क्या मिलेगा, वो कैसे डिसाइड हो, टाइमिंग क्या होगा? So NAV is very important role. Exchange traded fund में this is not crucial because it is available throughout. REITs is also like that. 3 ही कंपनी इंडिया में अभी है जो REITs इशू की है. ठीक है. In investment trust, these are not mutual fund scheme. I am repeating. REITs and investment trust are not mutual fund scheme. ये एक नॉर्मल कंपनी है जिनका शेयर सेल होता है. क्या होता है डिटेल डिस्कशन करेंगे. ठीक है. NAV calculation, बेसिक अदर्स कैलकुलेशंस आर देयर इन दैट चैप्टर. बीटा क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन किसको बोलते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया हूं स्टैटिस्टिक्स के बारे में. सो विल डिस्कस दैट आल्सो व्हेन चैप्टर्स कम. स्पीड अप हो जाएगा. इफ यू नो द ABCD वी कैन मेक अ सेंटेंस इजीली, सो दैट विल बी डन. From 8th unit we talked about taxability, which has been entirely covered as per updated information. हो सकता है बुक अपडेट नहीं, हम अपडेटेड हैं because a budget was passed. And on 23rd of July they made a demarcation. Before 23rd, after 23rd. तो पूरा इनकम टैक्स नहीं जानना है. 2 things are important: capital gain and other source for dividend income, and capital gain for short term and long term. 15% से 20% हो गया शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का पीरियड ही कम हो गया. 12, 24, 36 था, now it is 12 and 24. All in details we have studied, but still if that chapter comes, we'll give a 10-15 minutes review so that we can revise again before the exam. After the 8th unit talks about taxability. 9, 10, 11, 12 investors services. If you face a problem in buying, if some problems crop up, how you will file a complaint, basic thing, what is regular scheme, all this basic information are given in 9th and 10th unit. 11th and 12th unit, how you will choose, how you will invest in mutual fund. So this idea is very much important in 11th and 12th unit. हम कैसे चूज करें? फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव योर टास्क. SBI म्यूचुअल फंड, गो टू अ वेबसाइट. SBI म्यूचुअल फंड easy to operate through a mobile also. You just say there is a plan. They won't ask you your mobile number. Okay, only the name is required. What you are planning for? Financial goal. Already covered financial goal क्या होता है. आपको कुछ करना है. At the same time कितने दिन बाद चाहिए वो, टाइमलाइन एंड कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है. इफ यू नो दिस, यू हैव सेट अ फाइनेंशियल गोल. ड्रीम तो है, बट वो फाइनेंशियल गोल भी है. बट फाइनेंशियल गोल कब बनेगा? व्हेन यू हैव टाइम एंड फंडिंग टू इट. तो हाउ यू विल अचीव दैट? ओके, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ इट. नेक्स्ट we discussed about hierarchy of mutual fund organization. I am repeating it once again with practical relatives which I showed you. Topmost is sponsor. We discussed about sponsor is like promoter. Okay. So who is the promoter? For example, Axis Mutual Fund, the promoter is Axis Bank. SBI Mutual Fund, the promoter is SBI Bank. They started this concept और सारा फॉर्म भरे. उसके
बाद ये कंपनी स्टार्ट कर दी है, आई विल बी द स्पॉन्सर, बट हाउ म्यूचुअल फंड विल रन, तो दे हैव टू सेट अप अंडर द ट्रस्ट. द ट्रस्ट नेम इज एक्सिस म्यूचुअल फंड. इनमें एक एग्रीमेंट होता है सर, वो हम देख सकते हैं कि नहीं, वो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है. सो सर वी वर्क इन अ म्यूचुअल फंड, दैट इज अ ट्रस्ट वेयर वी वर्क. नो, दैट ट्रस्ट इज रन और टेकन केयर बाय ट्रस्टीज. फॉर एग्जांपल एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज लिमिटेड, तो ट्रस्टीज है कंपनी बोलते हैं. तो दे सेड आई विल लुक आफ्टर देम, बट व्हाट दे विल डू, दे विल लुक आफ्टर, बट काम क्या होगा जो लुक आफ्टर करेंगे, तो दे अपॉइंट AMC. For example, Axis Asset Management Company Limited. That is made where we do a job, where fund manager is appointed, whom we give money, and they invest in stock. Trustee just see that everything is as per the rules, regulations, guidelines given by the company. वो फंड लेके क्या करते हैं, फंड मैनेजर AMC में, जहां पर जिसको हम एक्सिस म्यूचुअल फंड बोलते हैं, they take the fund और whatever scheme, okay, not personalized scheme, मेरे हिसाब से नहीं बनाते, उनके हिसाब से बनाते हैं. उसमें से इफ यू फील दिस इज मोर सुटेबल टू यू, यू गो एंड इन्वेस्ट इन द पैटर्न गिवन. 100 रुपीज भी हो सकता है मंथली, 500 हो सकता है, 1000, एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन. SIP करना है, लमसम लगाना है, जो भी यू गिव द मनी दे विल इन्वेस्ट. सो हायरकी. आफ्टर दैट द कम्स द थिंग्स व्हिच दे बाय, हु विल कीप दिस, द कस्टोडियन आर देयर. The custodian are there. The fund manager buys shares, securities, there, whatever instrument is kept by custodian, and whose name it will be, when it will be transferred is taken care by registrar and transfer agent. सर बस इतने लोग ही चला देते हैं सब कुछ, ये important है. इसके अलावा और भी employees are there which are hired and various functions are there. This will come in your chapter and we'll go in details of this. So hierarchy is clear. Next we discuss about Bill, Ordinance, Act, Rules and Regulations. When Parliament is not in session and some important law has to be passed, we pass through ordinance. And later on, if it is accepted, it becomes Act. The Bill initially we call any law which doesn't come into force as a bill. After bill passes, a president signs it, both houses passes it, right? Then it becomes an Act. To understand the Act carefully, there are rules, but legislative says we run the law. Okay, so some are the law, legislative says we will not take care, the Act will take care. जो है SEBI Act will take care. So they are called regulation. How you will understand SEBI Act? Through regulation. And for us, the consideration is SEBI Mutual Fund Regulation 1996. So we discussed about this. Then SEBI Mutual Fund Regulation, I given you what is an appointment, who can be a sponsor, what is the qualification to become a sponsor. सर मुझे पढ़ना है तो देखना पड़ेगा whether I am qualified or not. Where I will find all this regulation specific to or restricted to mutual fund. Okay. Then come classification. Classification of mutual fund by structure. So there are 3 types of structure: open-ended, closed-ended, and interval. Open-ended mutual fund. You all are interested in investing in through my scheme. Give me money, I will invest. You want to withdraw money? Tell me, I will sell something and give you money. You want to give more money, you can give it to me. It is open throughout. What is the requirement when NFO comes? First time, at least 20% should have. Or one person cannot invest more than 25%. This law detail we will study. Just going through the idea. Open-ended is clear. Closed-ended, it is open, and rest of the time it is closed. So initially when NFO comes, you can come and give me money, and I will invest. You want to get your money back? Don't come to me. Sir, where I will sell now? I want to sell. So SEBI says in Mutual Fund Regulation 1996, if you want to sell, those whatever closed-ended mutual fund are there, it has to be mandatorily listed. If someone wants to buy, someone wants to sell, even after it is closed, they can buy in the market. मेरे पास जो पैसा आ गया, मैं उससे वो अब मैं as per my plan I will invest. वो है my fund manager. Interval fund, initially you can give money and then it is closed, and it reopens from 2 to 15 days. Within that period, if any further money you want to give, you can,
और यू वांट टू विथड्रॉ यू कैन, उसके बाद मेरे से नहीं खरीदो। दिस इज ऑल्सो लिस्टेड। अब जो भी करना है, बंद हो गया अभी 6 महीना बंद रहेगा, नहीं बेचना है आपको, कहां जाए, वेयर टू सेल, स्टॉक मार्केट। तो डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। ओपन क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड बाय मैनेजमेंट, एक्टिवली मैनेज एंड पैसिवली मैनेज। एक्टिवली मैनेज मींस देयर इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फंड मैनेजर। फॉर एग्जांपल फोकस्ड फंड, ऐसा कोई स्कीम है, आप लोगों ने पैसा किसमें लगाया, फोकस्ड फंड। नाउ व्हाट दे विल डू, दे विल इन्वेस्ट ओनली 30 शेयर्स, लार्ज, मिड, स्मॉल और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ओनली 30 शेयर्स। जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है कहां इन्वेस्ट होगा, ओनली 30 शेयर्स। इसको कौन सा स्कीम बोलते हैं, फोकस्ड फंड, ठीक है। एक और फंड है वैल्यू फंड। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि शेयर का प्राइस, मैं REIT अभी सुबह देख रहा था, उसका प्राइस बुक वैल्यू इज 385, मार्केट में चल रहा है 383। क्या मुझे खरीदना चाहिए, तो मुझे लगा हाँ अंडर प्राइस है मार्केट, थोड़ा दिन बाद डे एंड में हो सकता है या कल मार्केट विल ओवर कम 386 हो जाएगा। अगर मैं 1 लाख शेयर खरीदता हूं उसका, सपोज 1 लाख खरीदता हूं और हर में 2 रुपया प्रॉफिट और सेल कर देता हूं, तो 2 लाख रुपया प्रॉफिट है, और शॉर्ट टर्म का दिन भी लग जाए 20%, तो 40,000 गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, मेरे पास नेट इनकम आएगा। अगर प्राइस बढ़ता है लॉस भी हो सकता है। सो एक्टिवली मैनेज फंड, वैल्यू फंड क्या होता है, जो फंड मैनेजर है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली मैनेज करते हैं उसको। दे सी व्हाट इज अ मिसमैच। कौन सा शेयर, वोडाफोन 11 रुपये शेयर का प्राइस था एंड IPO ओपन का प्राइस 16, 17, 18 चला गया। इफ यू टॉक अबाउट करंट सिनेरियो, एंड राइट नाउ द प्राइस इज अगेन 10 रुपीज अप्रॉक्सिमेटली। वोडाफोन, स्टिल पीपल आर इन्वेस्टिंग इन वोडाफोन। 17 से 10 हो गया सर, इतना डिफरेंस है, स्टिल पीपल आर बाइंग, स्टिल पीपल आर बाइंग वोडाफोन आइडिया। क्यों सर खरीद रहा है, इतना कम हो गया? क्योंकि हो सकता कोई म्यूचुअल फंड कंपनी को ऐसा लग रहा होगा अभी मार्केट बढ़ेगा, इसका उसका न्यूज आया, उसका डिटेल्स पढ़ना। When Paytm fall due to Paytm Bank, 197 communication was on rise. Yes. But people panicked and started selling it. मैंने खरीदा 300 रुपया, 3 महीना में 600 रुपया। So this is what is done by value funding. Value funding is clear? ये भी एक स्कीम है। अब आपको भरोसा करना पड़ेगा फंड मैनेजर के नॉलेज के ऊपर, क्या ये सही से कैलकुलेशन करके वो फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है। इफ इज डूइंग दैट गुड फंडामेंटल एनालिसिस, वो सही कम दाम में खरीदेगा, बाद में बढ़ेगा। बाकी समय क्या पैसा भी लार्ज कैप में लगाना है, तो सेटल कंपनी मिड कैप में लगाना। इज इट ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस इज वैल्यू फंड। देयर इज अ कॉन्ट्रेरियन फंड, कॉन्ट्रा फंड बोलते हैं। ये 2-3 फंड का नाम क्यों बोला, कल भी क्वेश्चन हो गया था। फोकस फंड इज क्लियर, 30 ही कंपनी, सिर्फ 30। कौन डिसाइड करेगा, फंड मैनेजर बता देगा 30 मिलेगा, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वैल्यू फंड इज क्लियर। कॉन्ट्रेरियन फंड, मार्केट अभी अगेंस्ट जा रहा है, वोडाफोन आइडिया पे फॉर एग्जांपल अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले को लगता है, फंड मैनेजर को लगता है मार्केट अच्छा हो जाएगा, ये कम से कम 50 रुपीज जाएगा 3 साल में, और अभी 18-19 फिर से मार्केट पहुंच जाएगा। वो क्या किया, सब मार्केट में है, वो म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे कॉन्ट्रेक्ट, एंड एज पर लॉ एनी ऑफ द टू कैन बी सोल्ड, वैल्यू फंड और कॉन्ट्रेक्ट। ठीक, फंड ऑफ फंड कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, हो सकता बाद में आएगा। म्यूचुअल फंड में लगा, इंडियन टू डोमेस्टिक, ओवरसीज तो आउटसाइड। यहां तक वर्ड क्लियर है, वर्ड सारे। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्टिवली मैनेज्ड एंड पैसिवली मैनेज्ड? वैल्यू फंड इज एक्टिव और पैसिव? एक्टिव। ओके, चूज करना है। फोकस फंड, डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक फंड, इसका मतलब ही क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, दैट द कंपनी विल गिव डिविडेंड अर्निंग। वो सारा कंपनी में पैसा लगाओ जिससे हर साल देख रहे रिटर्न आता है, डिविडेंड डिक्लेयर करता है और पैसा मिलता है। कंपल्सरी नहीं है एवरी कंपनी को डिक्लेयर डिविडेंड।
तो वो पैसे लेके आपका पैसा लेके कहाँ लगाएंगे? समझ, जो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, तो ये सब स्कीम नाम कर दिया है, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? These are the actively managed. Passive managed, exchange traded fund. What happens in this? We know that we are focused. और ये दिन भर में कभी भी खरीद सकते, बेच सकते हैं. Exchange traded fund. NAV का वेट नहीं करना है. अभी थोड़ा देर पहले प्रॉब्लम हो रहा था. NAV का लास्ट डे का कैलकुलेशन है. आज फिर रात तक में होगा. Exchange traded fund में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा. जब मन है तब खरीदो, जब मन है तब बेचो. दूसरा ये फोकस्ड भी रहते हैं कि if they are nifty focused index passive managed nifty ETF तो ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? पैसा लेके निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे. कितना इन्वेस्ट करेंगे? जैसा परसेंटेज दिया हुआ है वो 50 का, वैसे ही परसेंटेज में इन्वेस्ट करेंगे. तो दे आर पैसिवली मैनेज्ड. उतना फंड मैनेजर को दिमाग में नहीं. ठीक है. नेक्स्ट कम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. यहां फोकस फिर से करना. Growth, income distribution and capital withdrawal and liquidity. Generally there are three type of funds: equity, debt and hybrid. इसी में कहीं ना कहीं लगेगा, इसके अंदर फर्दर जितना भी सेग्रीगेशन हो जाए. Equity, debt and hybrid. If we talk about liquidity, debt fund is there, overnight fund. ऐसा भी म्यूचुअल फंड होता है. हाँ, तो इसमें भी खरीद सकते, एक दिन 2 दिन में पैसा लगता है, विड्रॉल. इजी लिक्विडिटी. ELSS खरीद लिए, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, 3 इयर्स के लिए ब्लॉक रहता है. चिल्ड्रेन सेविंग फंड कुछ ऐसा है, 5 इयर्स के लिए ब्लॉक रहता है. रिटायरमेंट स्कीम आप तो बाई कर लेना. जब आप देखेंगे रिटायरमेंट स्कीम की कैटेगरी में, यहां डाल देना 5 साल पैसा ब्लॉक. सर विड्रॉल अभी नहीं हो सकता क्या? होगा, एट अ योर कॉस्ट. खरीदने के लिए कोई खर्चा नहीं है, एंट्री लोड, बट सेल करने वक्त यू हैव टू सी एग्जिट. एक्सपेंस लेते हैं, बोलते हैं हमको तो बेच के ला के देना पड़ेगा आपको, तो हम कुछ खर्चा नहीं. सो दिस इन लिक्विडिटी मस्ट बी क्लियर. ग्रोथ एंड दिस पीपल गेट कंफ्यूज. टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं 3 एग्जांपल देके समझा रहा हूं. मैथमेटिकल है तो थोड़ा फोकस करना. So what are the 3 things we need to focus? Growth fund. आपने पैसा दिया, चाहे इक्विटी हो, डेब्ट हो, हाइब्रिड हो, whatever it is. Taking equity, आपने पैसा दिया. I am asking 3 things from you. क्या चाहिए आपको? आप मुझे पैसा देंगे, मैं शेयर्स खरीदूंगा. If I buy shares, the company will give dividend to me, not to you. मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने बाय किया. वो डिविडेंड आपको वापस चाहिए कि वो पैसा मैं वापस से लगा दो मार्केट में? तो आप बोले पैसा वापस से लगा. Then you have opted growth scheme. क्लियर? इनकम आ रहा है, वो भी मेरे पास आ रहा है. इससे क्या हो जाएगा? NAV बढ़ जाएगा आपका यूनिट का वैल्यू बढ़ जाएगा. आपके पास 1 यूनिट 10 रुपए में खरीदे थे, अब सपोज मार्केट वैल्यू वो इन्वेस्ट करके, क्योंकि मेरा एसेट तो बढ़ गया ना, मैंने फिर से वो इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरा नेट वर्थ बढ़ गया. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया तो NAV बढ़ गया. तो दिस इज ग्रोथ स्कीम. आपका NAV बढ़ता है, रेगुलर रिटर्न नहीं मिलता. And if you ask any of the experts, they will prefer you to buy growth fund. But still there are second and third option. Income distribution cum capital withdrawal. म्यूचुअल फंड में आपको दूसरा स्कीम 10 से 15 हो गया NAV because you have opted for growth plan. Okay. Now if you go with income withdrawal plan, dividend payout, तो मेरे पास डिविडेंड आएगा, जितना भी कलेक्शन होगा मैं सब यूनिट होल्डर जितने भी डिवाइड करूंगा, सबको प्रोपोर्शनली बांट दूंगा. डिविडेंड विड्रॉल. तो आपने ऑप्शन क्या चूज किया? आई वांट डिविडेंड, ले जाओ. अब इससे क्या हो रहा है, जब 15 रुपीज जो NAV होना चाहिए था, उसी स्कीम में हम लोग जब क्लिक करते हैं तो वो आ जाएगा आपका NAV विल बी 30 रुपीज, क्योंकि आप 2 रुपया सब कुछ डिविडेंड विड्रॉ कर. तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं है ना री इन्वेस्ट करने का, तो मेरा वैल्यू तो कम हो गया. मेरे पास इतना फंडिंग था, इतना बढ़ गया पहले स्कीम में, तो मैं पूरा का पूरा पैसा लगा दिया. योर NAV इंक्रीज, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड होगा, वो वैल्यू अमाउंट ज्यादा है. सेकेंड केस, जब हम विड्रॉ कर लेते हैं, मेरे पास इतना ही फंड था, मेरा फंड बढ़ा,
बट व्हाट यू वांटेड टू विथड्रॉ, तो मेरा फंड तो उतना ही रहेगा, थोड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन और दैट इज डिविडेंड जितना है वो तो वापस मांग लेगा, तो एनएवी कम हो जाए तो लॉजिकली कुछ भी क्वेश्चन होगा इसमें पूछ लेगा, बिकॉज दिस इज न्यूज़ टू यू। थर्ड केस, you don't want dividend withdrawal, you want dividend reinvested। तीन ही समझना है, ग्रोथ, इनकम विथड्रॉल, इनकम रीइन्वेस्टेड। तो थर्ड केस में आ रहा हूं, ग्रोथ इज ओके, विथड्रॉल इज ओके, विथड्रॉल रीइन्वेस्टेड। मैं बोला आपने क्या ऑप्शन चूज किया, बोला IDCW, डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड रीइन्वेस्टेड। सपोज C has chosen डिविडेंड रीइन्वेस्टेड, बोले हमको पैसा नहीं चाहिए, तो बोली ऑप्शन नहीं, ग्रोथ ले लेते, बड़े सोचे थे कि अब क्या हो सकता है, आई हैव दिस मच ऑफ फंड, आई हैव रिसीव्ड डिविडेंड, माय फंड हैज इंक्रीज्ड, यस और नो। नाउ आई आस्क्ड हर टू टेक योर डिविडेंड इनकम, शी सेड नो नो हमको नहीं चाहिए, डिविडेंड पे आउट तो ऑप्ट नहीं कीजिए, आई हैव चूजन IDCW बट आई डोंट वांट दैट डिविडेंड, तो मैं बोला इस पैसे का मैं क्या करूं, तुम लोग को चाहिए नहीं, बोला नहीं चाहिए, ये तो डिविडेंड मिला मुझे, आई थॉट आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, अब तो बोला नहीं चाहिए, अब उस पैसे का मैं क्या करूं, मैं किया वापस से शेयर खरीद लिया, जो भी स्कीम है, आई परचेज दैट, तो मेरा वैल्यू बढ़ गया। अब मैं तुम्हें एक्स्ट्रा यूनिट्स बढ़ा दूंगा, एनएवी तो कम हो गए बट नंबर ऑफ यूनिट्स विल इंक्रीज, क्योंकि मैं जो खरीदा हूं तुम्हारे ही पैसे से, जो तुम नहीं लिए हो, आई हैव परचेज शेयर्स एंड वो वैल्यू का मैं यूनिट्स दे दिया प्रोपोर्शनली, एक में पैसा मिल जा रहा है, एक में यूनिट्स मिल जा रहा है, और एक में कुछ नहीं मिल रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। थ्री थिंग्स आर क्लियर, श्योर नहीं होगा, श्योर रिकॉर्डिंग भी क्या करेंगे, फिर आएगा तो फिर मैं कौन सा ग्रोथ फंड में वो डिविडेंड नहीं मिला, नहीं, मतलब उसमें यू वांट अ कंपाउंडिंग बेनिफिट, मेरे पास पैसा है, मैं उससे ही शेयर्स खरीदते जा रहा हूँ और विड्रॉ ही नहीं किया मैंने, उसमें डिविडेंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, नहीं डिविडेंड का कॉन्सेप्ट, पे आउट का ऑप्शन। व्हेन यू विल सर्च इन रियल लाइफ, तो आई टोल्ड यू वन टास्क, SBI म्यूचुअल फंड में जाना, वेबसाइट में, उसमें क्लिक करना प्लान, तो दे विल गिव अस 7 क्वेश्चंस, क्वेश्चनरीज बोलते हैं डिसर्टेशन में। इफ यू क्लिक एवरीथिंग ना, योर सब्जेक्टिव थिंग्स विल रियलिटी विल कम। एक कितना मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, अगर तुम उसमें डालते हो, मैंने डाला था, मेरा घर का खर्चा 40,000 है और मैं चाहता हूँ 55 ईयर्स में रिटायर हो जाना, 20 ईयर्स डाउन द लाइन, 21 ईयर्स, 20 ईयर्स अप्रॉक्सिमेटली। I also had 11 credit cards. मेरा उतना कुछ खास इनकम था नहीं उस टाइम पे, but I still had them because banks were very competitive. They're providing cards. Hey, ले लो. And then they suffered also for that. Today morning we had Sasank sir's class, then Sasank sir's class was about the securities and new terminologies as always, and after that Ankit sir's class, our Vijit has recorded in 4K around 23 minutes and my whole storage was gone. took almost 11 GB. 11 GB storage has been gone due to that, and now we are going to eat, have food, like it's tiffin break for 1 hour. So let's. There is a new launching drink, energy drink, Hurricane. So for promotion, they are supplying free to every student. That's why there is so much line. You can see that. It's our break time. Everyone is enjoying. Tanumai Class Economics going on right now. I'm telling you. And head back home because the thing is, we were talking with our mentor Ankit sir regarding issues related to A2A and all, and some personal problems with the mutual fund and all. And So he gives us some information knowledges as well. yeah. We don't know, like previous classes or previous meet with sir, we don't know that sir is this much like what to say, fluent या frequent, क्या बोलते हैं, What do you want to बहुत say? बहुत open है sir, open minded. Yeah, Sir is very much open minded. We like it. and frank with us. Yes. So see you in the next video. Bye bye. I know nobody watches, but still. As you can see,
this much crowd we face regularly while going back from college and while coming to college now.